Dear students, today we will read the lesson The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. In this chapter, the writer underlines the damage man has done to the planet on which he lives. He has destroyed forests, fisheries, grasslands, and croplands. The destruction of forests has led to the extinction of many wild species. The main factor responsible for this has been the fast growing population of the world. More children does not mean more work, it means more people with no work. Thus, man has endangered his own future on this planet. In the words of Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. We must return it to them in good condition. Fortunately, man has now woken up to this responsibility. He now understands that development should be sustainable. It means development that meets the needs of the present but does not affect the ability of the coming generation to meet their needs. The realization has come, only it has to be put into effect in a sincere and responsible manner. About the author, Nani Adisir Palkhiwala was a jurist and liberal economist. Palkhiwala was born in 1920 in Bombay to middle class Parsi parents. He was educated at Masters Tutorial High School and later at St. Xavier's College and earned a master's degree in English language and literature. He further studied law at Government Law College, Bombay, and became a prominent lawyer of his time. Theme of the lesson: more than ever, the planet Earth is losing its vitality and freshness. Due to human development activities, our Earth has become highly polluted, highly irreparable, and highly damaged. Humans have taken out petroleum, coal, and a lot of natural resources from the Earth. We have removed more than half of the world's vegetation and emitted a large quantity of greenhouse gases and a lot of other chemicals. The author is trying to bring our attention to this calamity and the steps being taken to prevent the worst from happening. लेखक हमारा ध्यान इन सब विषयों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं. The author specifically focuses on the state of green initiatives in India and the urgent need to revitalize them. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. यह आर्टिकल नानी पालखीवाला के द्वारा रचित और पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को. The issue that he raised regarding the declining health of the earth, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया, इस पृथ्वी की अस्वस्थकर स्थिति को उन्होंने दर्शाया, जिसका मूल्य है, जिसका मतलब है और जो अभी औचित्य में है, जिसका continue to have relevance. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. हम में से कोई भी ध्यान नहीं कर सकता है किसी भी ऐसे मूवमेंट की, आंदोलन की पूरी विश्व के इतिहास में जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हो, पूरे मानव जाति का, इतनी पूरी तरह से जितना ग्रीन मूवमेंट रोल ने किया, जो 25 years ago जब ये लेसन लिखा गया तब स्टार्ट हुआ. In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. सन 1972 में विश्व का पहला ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में बनाई गई.
सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरेवोकेबली, हम लोगों ने अपनी उम्मीदों को परिवर्तित किया है। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक, यांत्रिक दृष्टिकोण से पूर्ण दृष्टिकोण की तरफ, एन इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की पर्यावरणीय सोच को हम लोगों ने जागृत किया, विकसित किया। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, ये मानव के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन है, एक चेंज है। एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड, उतना ही रिवोल्यूशनरी है जितना कि कॉपरनिकस ने जब इंट्रोड्यूस किया था, वो टॉट मैनकाइंड, जिन्होंने मनुष्यता को ये सिखाया इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि पृथ्वी और दूसरे अन्य ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये बताया मानव जाति को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव जीवन के इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, पूरे विश्व में एक चेतना जागृत हुई है कि ये पृथ्वी भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एनर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक बहुत बड़ा विशालकाय भाग, भूभाग, जिसके हम हिस्से हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी मेटाबॉलिक आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड, और कुछ इसकी जरूरतें हैं जिसका हमें आदर करना पड़ेगा, एंड प्रिजर्व, और इसे बचा के रखना होगा। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और इस पृथ्वी के जो चिन्ह नजर आ रहे हैं वो एक बीमार मरीज की तरह से है, जिसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा हो। पृथ्वी उसी तरह से हो गई है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. हमने शुरुआत की है, we have begun to realize, मैं महसूस करने की, और ethical obligations, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, to be good stewards of the planet, हमें अपने इस प्लेनेट का प्रहरी बनना पड़ेगा, एक अच्छा प्रहरी, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और एक जिम्मेदार ट्रस्टी जो हमारे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का ख्याल करके हम इस पृथ्वी की देखभाल कर सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, और ये जो दृष्टिकोण आया, विचारधारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पॉपुलर हुआ 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण पर विश्व कमीशन बना, एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, और अपने रिपोर्ट में उन्होंने इस विचार को डिफाइन किया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, एक ऐसा विकास जो आज की आवश्यकताओं को पूरी करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, बिना ही कंप्रोमाइज किए हुए हमारे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों को कंप्रोमाइज किए बिना हम आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करें। That is without stripping the natural world of resources future generations would need. बिना नष्ट किए हुए जो प्राकृतिक विश्व की संपदा है, वो अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बचा करके रखने की उनकी आवश्यकता जो पड़ेगी, उसको बिना नष्ट किए हुए हमें अपनी आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। Need for sustainable development. The Green Movement captured imagination of humans very quickly since the first Green Party was found in New Zealand in 1972. The author hopes
that this holistic and ecological view of the world as a living organism stays for a long time. He compares the Earth's vital signs to those of a patient in declining health. The author discusses the concept of sustainable development described in the report by World Commission on Environment and development as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. लसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां पे एक नोटिस लगी हुई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, और पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, बल्कि एक आईना लगा हुआ है जहां पे आप अपने आप को देख सकते हैं, आप खुद अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, धन्यवाद कीजिए बहुत सारी एजेंसीज का भिन्न भिन्न देशों में जिन्होंने प्रयत्न किया। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, एक नई जागरूकता आई अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे खतरनाक जानवर के बारे में। ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। उन्होंने महसूस किया कि अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा एक ऐसे व्यवस्था की तरफ बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि हमें डोमिनेशन से हट करके पार्टनरशिप की तरफ चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिल करके हमें व्यवस्था बनानी होगी। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। वैज्ञानिकों ने कैटलॉग बनाया है 1.4 मिलियन जीवित स्पीसीज का, जो भिन्न जातियां हैं जो पृथ्वी पे रहती हैं, विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ मनुष्य की पृथ्वी को शेयर करता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल एंड कैटलॉग लिविंग स्पीसीज। और बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनका अभी पता ही नहीं है, अभी कैटलॉग नहीं किया, सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट देयर is 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. बायोलॉजिस्ट जो है कहते हैं that 3 to 100 million दूसरी जो लिविंग स्पीसीज हैं वो अभी भी, जिनके बारे में हम अननोन है, हम जानते नहीं हैं, अननेम्ड हैं और अंधेरे में हैं, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया, एक पुराना अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जिसने ये मुद्दा रहा, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जिसमें इकोलॉजी के पर एक प्रश्न, पर्यावरण पर, एनवायरमेंट, was the branded commission which had a distinguished Indian as one of its members। और उसी कमीशन में एक भारतीय मेंबर भी थे, मिस्टर एल.के. झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और पहले उस रिपोर्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, प्रश्न उठाया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉस्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, क्या हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक रेगिस्तान छोड़ के हम जाएंगे? impoverished landscapes, बंजर जमीनें, an ailing environment, और बीमार पर्यावरण, क्या हम ये छोड़ के जाने वाले हैं अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए? मिस्टर लीस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, लीस्टर आर ब्राउन ने अपने विचारपूर्ण पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि पृथ्वी की जो मुख्य जैविक तंत्र है वो 4 है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। फिशरीज मत्स्य, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड हरे भरे मैदान घास के, एंड क्रॉपलैंड्स और फसली जमीनें। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही हमारे वैश्विक आर्थिक तंत्र का फाउंडेशन है, यही बनाती है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड
हमें भोजन देने के अतिरिक्त दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स, ये चारों तंत्र जो हैं इस और अन्य चीज़ें भी हमें उपलब्ध कराती हैं फॉर इंडस्ट्री, उद्योग के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, सिवा मिनरल्स के, एंड पेट्रोलियम, डिराइव्ड सिंथेटिक्स, ये सब हमें ये पृथ्वी, ये धरा उपलब्ध कराती है। पेट्रोलियम, मिनरल्स, सिंथेटिक्स इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में ह्यूमन चेन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, मानव जो है इन सभी तंत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और ये बहुत बढ़ रहा है, लोगों का दावा बढ़ता जा रहा है, हर एक चीज पर अपना बहुत अति अधिक पृथ्वी का दोहन करना शुरू कर दिया है, इन चीजों को, रिसोर्सेस को निकालना शुरू कर दिया है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, इस हद तक कि अब इससे धरा को नुकसान पहुंचने लगा। व्हेन दिस हैपेंस फिशरीज कोलैप्स, और जब ऐसा होगा तो ये फिशरीज कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, हरे भरे घास के मैदान जो है बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरेट, और ये जो फसली जमीनें हैं ये भी खत्म हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये जो व्यवस्था है, दुनिया है, प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन हंग्री है, और इसके लिए ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, अतिरिक्त मछली पकड़ना ये कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा मछली का शिकार कर रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड, और वहां पर जो लोकल जंगल है उसे ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों का कटाव हो रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट, कुछ जगहों पे तो ईंधन, ये लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, ईंधन जो है, कि जो पॉट में वो पका रहे हैं, जिस बर्तन में जो खाना पका रहे हैं, कॉस्ट मोर, ईंधन ज्यादा कॉस्ट करती है देन व्हाट गोज इनसाइड, जो वो लोग बर्तन में पका रहे हैं उस भोजन से ज्यादा कीमती ईंधन हो गया। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन का पावर हाउस है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, बहुत सारी जातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, उसकी तबाही के कारण वो जातियां ही नष्ट हो रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, पृथ्वी से लुप्त हो रही हैं। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, ऐसा ठीक कहा गया है कि जंगल से ही मनुष्यता निकली। डेजर्ट फॉलो, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो, और ऐसा होगा तो फिर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी पृथ्वी। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, और जो विश्व की प्राचीन ये धरोहर थी जंगलों की, वो इतनी तेज दर से नष्ट हो रही है, 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक वर्ष में इतनी मिलियन, बल्कि इससे भी ज्यादा। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स, और जो डंग का, उपलों का जो यूज हो रहा है जलाने के लिए, बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, उससे हम जमीन में जो हम फर्टिलाइजर के रूप में गोबर का इस्तेमाल करते थे, अब उसको पृथ्वी पर न डाल करके खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल न करके हम ईंधन के रूप में कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी भी नष्ट हो रही है, जमीन, उपजाऊ जमीन खत्म हो रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ऐसा करता है कि 5 गुना दर पर जो है जंगलों को लगाना होगा, नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 में जो डिमांड होगी उसको पूरा करने के लिए। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जेम्स स्मिथ ने, जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकंड, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रति सेकंड 1 एकड़ जमीन खो रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकंड, 1.5 एकड़
जमीन हम लोग प्रति सेकेंड खो रहे हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मनुष्य का जो इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ा है। द ऑथर conjectures that with the advent of the green movement, humans have realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. The Brand Commission, that also consisted of a distinguished Indian, Mr. L.K. Jha, published a report raising the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? Lester R. Brown, in his book, The Global Economic Prospects, points out that in large areas of the world, human claims on 4 biological systems, namely fisheries, forests, grasslands, and croplands, are reaching unsustainable levels. It has been said that forests precede mankind and desert follow. The world is losing its forever forest cover at a fast rate. In the World Bank estimated that a 5-fold increase in the rate of forest planting was needed to cope with the expected fuel demand in the year 2000. It is old data. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of our country. आर्टिकल 48 हमारे संविधान में, भारत का संविधान जो है ये देता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, स्टेट जो है अपनी पूरी कोशिश कर सकता है सुरक्षा करने की, टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में सुधार लाने की, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, और जंगलों का बचाव करने में, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो जंगली जीव हैं उनको बचाने में संविधान हमें ये राइट देता है कि इसको बचाव करना। बट व्हाट कॉजेज endless anguish is the fact that laws are never respected. लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है और गुस्सा भी है, अंतहीन ये वास्तविकता, that laws are never respected, कि हमारे देश में कानून का कभी आदर नहीं किया जाता, nor enforced in India, ना ही इनका कड़ाई से पालन कराया जाता है। For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. एक उदाहरण के लिए संविधान में ये नियमित है, नीत है, that casteism, untouchability, छुआछूत, bonded labor, विधवा मजदूरी shall be abolished, इसको खत्म कर दिया जाएगा। But they flourish shamelessly, शर्मनाक स्तर पर ये पनप रही हैं, ये आज भी हैं, even after 44 years of the operation of the Constitution. संविधान निर्मित होने के इतने वर्षों के बाद आज 2020 में भी ये चीजें हैं। ये recent report of our parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. और पार्लियामेंट में भी इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया, भारतीय जंगलों का जो कटाव हो रहा है, जो नष्ट हो रही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, एक भरोसेमंद डेटा के अनुसार, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। 3.7 मिलियन एकड़ जो है जमीन लूज कर रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बहुत बड़ा क्षेत्र जो एक जंगली वन क्षेत्र के रूप में दर्शित है, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जिसे नक्शे में ऐसे दिखाया गया है कि जंगल है, लेकिन वो ट्रीलेस है, जाके हकीकत यह है कि वहां पेड़ ही नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और जो वास्तविक नुकसान है जंगलों का वो 8 गुना है, जो रेट पे दिखाया गया है उससे 8 गुना स्तर पर जंगलों का नुकसान हुआ है। ए 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड, एक 3 वर्षीय अध्ययन सैटेलाइट्स के पर्यावरण के और सैटेलाइट्स के द्वारा हवाई फोटोग्राफी ली गई, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस के जो द्वारा कराया गया, वांस वो चेतावनी देता है दैट द इन्वायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड, पर्यावरण जो है उसका नुकसान होता जा रहा है, कटाव होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, सो बैडली, इतने बुरे ढंग से, दैट इट इज क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल स्थिति, गंभीर स्थिति में। इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, 88 देशों में जो खोज की गई, बहुत गंभीर स्थिति में पर्यावरण है।
There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इसमें कोई संदेह नहीं कि जो विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, उसका जो सबसे मुख्य कारक है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानवीय जीवन, मानवीय समाज का के भविष्य का जो जो नष्ट भविष्य जो नष्ट हो रहा है उसका सबसे मुख्य रीजन ये है. इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. मनुष्यता को इस पृथ्वी पर 1 मिलियन साल से भी ज्यादा लगा. इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स, इससे भी ज्यादा, टू पहुंचने में फर्स्ट बिलियन, 1 बिलियन संख्या हमारी होने में. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. ये हमारे विश्व की जनसंख्या थी सन 1800 में. बट बाय द ईयर 1900, 1900 में ए सेकंड बिलियन वाज एडेड, एक दूसरा बिलियन जुड़ गया जनसंख्या में. एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन. और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन लोग जुड़ गए. जनसंख्या इतनी तीव्र स्तर से ग्रो किया. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. आज की जनसंख्या इससे भी ज्यादा, 0.7 बिलियन से भी. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन. हर 4 दिनों में 1 मिलियन जनसंख्या विश्व की बढ़ जाती है. फर्टिलिटी फॉल्स, आर इनकम राइज, उपजाऊपन घटती है जब आमदनी बढ़ती है. एजुकेशन स्प्रेड्स, जब शिक्षा फैलती है. एंड हेल्थ इंप्रूव्स, और स्वास्थ्य में सुधार होता है. दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. विकास ही एकमात्र रास्ता. हमें विकास करते जाना है क्योंकि जनसंख्या हमारी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस. लेकिन विकास से भी अपने आप में इतना कुछ असर नहीं हो पाएगा अगर इसी रूप से जनसंख्या बढ़ती रही. द रिच गेट रिचर, अमीर जो है और अमीर होते जाएंगे. एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब गरीब और बच्चे ही उनके होते रहेंगे. विच कंडेम्स दैट देम टू रिमेन पुअर, और वो उनको गरीब होने के लिए ही स्थापित करेंगे. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि अधिक कुशल श्रमकार. मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, उसका केवल यही मतलब है कि अधिक लोग बिना काम के होना. इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल. ये सुझाव नहीं दिया जा सकता, ऐसा कभी नहीं हम सोच सकते कि मानवीय मनुष्य को पशु के समान समझा जाए. एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड, और उनको स्टरलाइज बाध्यकारी रूप से किया जाए. बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग. लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है कि हम वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मकसद के. द चॉइस इज really between control of population and perpetuation of poverty. और ये हमें चुनना है, चॉइस इसके बीच में कि हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है और गरीबी को अगर हटाना है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. 920, 130 मिलियन इज मोर देन the entire populations of Africa and South America. अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पॉपुलेशन को मिला के उससे भी कहीं ज्यादा. दिस इज एन ओल्ड डेटा. नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अब कोई परिचित नहीं है भारतीय परिस्थिति से would doubt that the hope of the people would die. अरे लोगों का उम्मीद ही खत्म हो जाएगा अपनी झोपड़ियों में जिसमें वो निवास कर रहे हैं. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे. इकोलॉजिकल रूल इन इंडिया. आर्टिकल 48A of the Constitution provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. A Parliament's Estimates Committee report highlighted the catastrophic depletion of India's forest. Large areas officially designated as forest land
are already virtually treeless. Growth of world population has had a major impact on the environment. Fertility falls as income rise. Education spreads and health improves. Thus, development is the best contraceptive. The choice is between control of population and perpetuation of poverty. In India, population control needs to be given topmost priority so that the pressure on environment can be alleviated. For the first time in human history, we see a transcending concern. मानवीय इतिहास में हम पहली बार ये हम ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, कि मनुष्यों को ही बचाने की नहीं बल्कि हम इस प्लेनेट को भी बचाने की, इस पृथ्वी को बचाने की जिस पे हम रह रहे हैं. वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और हमने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है. द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल और डिमाइस. ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं ये जरूरी नहीं कि वो हमारे खत्म होने की तरह का इशारा कर रही हैं. इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. ये हमारे आने वाले भविष्य का भी पासपोर्ट है. आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो रहने वाली उसको हम क्या देके जा रहे हैं. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये एक वैश्विक की चेतना जग रही है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारियों का एरा, समय. सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी तरफ ध्यान दें, पर्यावरण को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं. इट इज ए होलिस्टिक व्यू, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. हमें विश्व को एक मान करके चलना होगा और विश्व पृथ्वी को बचाने की, धरा को बचाने की सोचना होगा. हमें समूहों में बट करके नहीं बल्कि एक होकर के इकोलॉजी को बचाने की आवश्यकता है. इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उद्योगों का मुख्य रोल है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Ullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said, उन्होंने कहा, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. हमारे जो एग्जिस्टेंस है जिसको हम बनाए हुए हैं एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर के रूप में, रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस. उसमें आवश्यकता है कि हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को बढ़ावा दें. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, मार्गरेट थैचर के द्वारा अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, नन हैज पास सो डिसिबली इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फिलिसिस वर्ड्स. उन्होंने कहा, नो जनरेशन हैज द फ्रीडम ऑन दिस अर्थ. किसी भी पीढ़ी को इस पृथ्वी पर स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है. वो स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने का. ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी. जो कुछ भी हमारे पास है एक जीवन भर एक किराएदारी के रूप में, हम किराएदार के रूप में यहाँ रहते हैं. विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज. और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस धरा को नष्ट नहीं करना है. कुछ भी कर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको रिपेयर करने की हम लीज पर ले रखे हैं. हम यहाँ पे एक किराएदार के रूप में हैं. कोई हमारा दावा नहीं है, हक नहीं बनता, कोई फ्री होल्ड नहीं हमने करा रखा है इस पृथ्वी पर. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लिस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स. हम लोगों ने इस पृथ्वी को अपने फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से नहीं प्राप्त किया एक संपदा के रूप में. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हमने उनसे उधार लिया है आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए. The planet survival. For the first time, humans are taking a holistic view and caring about the survival of the planet along with the people. The author imagines the transformation a businessman shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Ullard, who declared himself the company's chief environment officer. Margaret Thatcher, during her prime ministership, said, no generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease.
Mr. Lester Brown famously said, "We have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children." Thank you very much, students. I hope that all of you have understand. Thank you.